तो हमने कल यहाँ पे लीव किया था लेक्चर, है ना। एक बार दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं इसी चीज को। एवरी टेस्टिस इन मेल इज हैविंग लॉट्स ऑफ चेम्बर्स। उन चेम्बर्स को हमने क्या बोल दिया था? लोब्स, ठीक है। एंड बिकॉज दे आर प्रेजेंट इन टेस्टिस, तो इसलिए हमने क्या बोल दिया इनको? टेस्टिकुलर लोब्स। एवरी टेस्टिकुलर लोब वाज हैविंग 1 to 3 thread-like structures. These 1 to 3 thread-like structures in every testicular lobe was known as seminiferous tubules, which is the actual site for formation of sperm. All these sperms which are produced inside this seminiferous tubule will be collected here, and this place where all these sperms are collected are known as retitestis. This retitestis pass these sperms to the next level or next duct, that is vas efferentia. Vas efferentia pass this to a curvy structure known as epididymis. Epididymis take this towards a duct on the both sides known as vas deferens. Vas deferens में क्या था? It is coming from both these sides like this, ठीक है, and it is crossing the ureters and joining at a junction. At the junction, there are 3 more glands which are also secreting some things into that particular junction, ठीक है। और ये जो common pathway होता था, that common pathway was known as urethra. Urethra was the common pathway for urine because it is taking urine from urinary bladder also, and it is taking the semen produced from here also. So therefore, it is regarded as the common pathway, ठीक है। पेनिस में हमने पढ़ा that it is the copulatory organ and it is the secondary sex organ. Secondary sex organ में we studied that we have different glands, जैसे कि ये 3 glands. We have different ducts जैसे vas efferentia, epididymis, vas deferens, ये सब ducts. These all constitute the secondary sex organs. Secondary sex organs do not produce gametes or do not produce sperm. It only help in the process or it only support the primary sex organ. बस वही काम होता है, ठीक है। Male copulatory organ में we studied that it consists of a fold of skin on the tip portion. That fold of skin was known as foreskin, and the tip portion is very smooth without any hair, known as glans penis. दोनों में confuse मत होना, ठीक है। चलिए, तो आज पढ़ते हैं हम कि how the sperms are produced and what is the process. This process of production of sperm is known as spermatogenesis, and the production of gametes, any type of gamete, sperm or ova, is known as gametogenesis. So spermatogenesis is a type of gametogenesis. इसी तरह से हम लोग पढ़ेंगे ओवा का प्रोडक्शन कैसा होता है, तो इट विल बी oogenesis. जेनेसिस क्या होता है? प्रोडक्शन ऑफ समथिंग, राइट? The production of sperm is spermatogenesis. Production of gametes is gametogenesis. Production of ova is oogenesis. ठीक है, ये 3 चीजें ध्यान में रखना। नेक्स्ट चीज, यहाँ जो आपको फिगर दिखाया गया है, उस फिगर में यू कैन इजिली सी द आउटर मोस्ट ग्रे कवरिंग. दिस आउटर मोस्ट ग्रे कवरिंग इज द स्क्रोटल सैक और स्क्रोटम. इनसाइड दिस स्क्रोटम यू कैन सी दिस, ये जो क्रीम कलर का पूरा ऑर्गन सा है, this is testis, ठीक है। this is testis. Every testis consists of different chambers, you can see like this, ये, and every chamber consists of these thread like seminiferous tubules, okay. Every seminiferous tubule is meeting at some point. This point was known as retitestis, also known as rete in short. Retitestis was giving all this stuff to the vas efferentia. vas efferentia के बाद आता है आपका curvy structure known as epididymis. Epididymis के बाद a duct carries this sperm which is produced, that is the vas deferens, right? साथ ही साथ अगर आप गौर से देखेंगे तो testis जो है, that is a primary sex organ, that is also supplied with the blood vessels. If you can see veins also, you can see arteries also, right? तो टेस्टिस को भी ब्लड की जरूरत है, टेस्टिस को भी ब्लड सप्लाई हो रहा है अच्छा खासा, ठीक है। तो दिस ब्लड वेसल्स आर आल्सो. नाउ सी,
इन्होंने क्या किया, यहाँ से एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल को जूम करके आपको दिखाया हुआ है इस तरह, ठीक है। जो आपने लोब्स देखे थे ना, ये टेस्टिस थी, these were different chambers or testicular lobules. Every testicular lobule was having 1 to 3 seminiferous tubules, and every seminiferous tubule को इन्होंने इस तरह से सामने के साइड से ऐसे यहाँ पे दिखाया हुआ, ठीक है। तो दिस इज दी फ्रंट पोर्शन ऑफ अ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। के अंदर आपको क्या दिखेगा, वो जो थ्रेड लाइक चीज आपने देखी, उसके अंदर एक्चुअली क्या दिखता है वो दिखाया हुआ, ठीक है। नाउ सी, एवरी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल इज हैविंग, जूम अगर करेंगे तो आपको दिखेगा, is having sperms which are being produced on the innermost side. यहाँ पे आप देख सकते हो, lots of sperms are produced inside these tubules, right? Now, how these sperms are produced, what is the mechanism of production of these sperm, वो हमको पढ़ना है। अगर आप देखेंगे तो it all is starting with a simple cell like this. ये जो simple cells यहाँ पे दिख रहे हैं, these are diploid cells, also known as primary germ cell और primordial germ cell और sperm mother cell, कुछ भी बोल दो, ठीक है। जैसे आपने पॉलन मदर सेल पढ़ा, एक पॉलन मदर सेल जो डिप्लॉयड था, उससे 4 पॉलन ग्रेन बन गए, राइट। उसी तरह से एक यहाँ पे स्पर्म मदर सेल है या प्राइमोडियल जर्म सेल है, which is forming the sperm eventually like this, and every cell, this one single, every cell will be forming 4 sperms by this, ठीक है। 4 sperms बनेंगे every cell से, okay। So as you can see, the primordial germ cells are present on the tip portion of this seminiferous tubule. अब इन प्राइमोडियल जर्म सेल्स में ऐसा क्या हुआ दैट दे आर हेल्पिंग इन द प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म। उससे पहले आप ये छोटा सा डायग्राम देख लेंगे, ये सब बनाना है आपने नोटबुक, ठीक है। दिस इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ टेस्टिस, ओके, एंड इनसाइड इट यू कैन सी द प्राइमरी जर्म सेल, एंड प्राइमरी जर्म सेल से आपका बनता है स्पर्मेटोगोनियम, स्पर्मेटोगोनियम से आपका बनता है माइटोटिक डिवीजन के बाद बहुत सारे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, आगे पढ़ेंगे आप, ठीक है। स्पर्मेटोगोनियम से क्या बन गए, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, आफ्टर व्हाट, आफ्टर माइटोसिस। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से उसके बाद में आपको फिर मियोसिस करवाना पड़ता है तो पहली मियोसिस डिवीजन के बाद प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से वी आर हैविंग सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में meiosis 2 रन करवाएंगे, तो फाइनली विल बी गेटिंग spermatid, एंड spermatid से फाइनली विल बी हैविंग द मैच्योर sperm, ठीक है। ये समरी बताया आपको, डिटेल आपको इधर दिया हुआ ये जो बीच में आपको दिख रहे हैं ना धागे धागे, दीज आर द क्रोमोसोम, ठीक है। इफ यू कैन सी ओनली you can see only like 1 chromosome, that means this cell is haploid. You can see 2, that means this cell is diploid, okay. So as you can see, it started with the primordial germ cell, which is diploid, obviously. This primordial germ cell will undergo mitosis first, ठीक है। Sorry. तो यहाँ पे अभी फिलहाल तो क्या हो रहा है, आपकी माइटोटिक डिवीजन हो रही है। तो माइटोसिस में ऑब्वियसली विल बी गेटिंग अगेन डिप्लॉयड सेल्स, एक पेरेंट सेल से 2 डॉटर सेल हमारे पास बन गए आफ्टर द माइटोटिक डिवीजन, माइटोसिस के बाद। इनमें से कोई एक will be chosen, and that one cell will be undergoing the meiosis was first division, ठीक है। क्या हुआ, this is the primordial germ cell that was diploid, this undergoes mitosis mitosis के बाद obviously it will be forming 2 daughter cell which are also diploid, right। उसमें से कोई भी एक डॉटर सेल को चूज करो, that will be performing meiosis 1, and after that cell which is performing meiosis 1, वो क्या होगा, it will be forming 2 daughter cell like this, and these daughter cell right now will be haploid। आपको पता है chromosome number becomes half after meiosis 1, so these are now haploid, right। इन haploid cell में अब दोबारा से क्या होगा आपका meiosis 2, meiosis 2, meiosis 2 रन होने के बाद these will form 2 more daughter cells each, and finally forming these spermatids। Spermatid will undergo differentiation
Differentiation matlab they know what to do in their life now. They know they have to form sperm. So spermatids will undergo differentiation to form sperms like this. ठीक है. और अगर क्रोमोसोम के हिसाब से देखें तो वो भी आपको बता देते हैं, बहुत इजी है उसको याद रखना. पेयर में दिख रहे हैं ना यहाँ पे आपको, तो दीज आर डिप्लॉयड हैविंग 46 क्रोमोसोम. ये तो इसको चूज किया आपको, ये प्राइमोडियल जर्म सेल को, तो वो तो सेम ही है. और यहाँ पे आफ्टर माइटोसिस जो आपके दो डॉटर सेल प्रोड्यूस हुए हैं, they will also be having 46 and 46 chromosome. After the cell which is chosen for meiosis 1, that cell ये जो चूज किया गया है, that cell, ये देखो आप ध्यान से देख सकते हो इसमें meiosis में आपको पता है कि if this is the parental chromosome, तो जो cells में डॉटर सेल्स में क्रोमोसोम आएगा that will be like this, but this is also regarded as one chromosome, this is also regarded as one chromosome, right? तो इसी वजह से 46 46 सेम रहता है. मियोसिस में क्या होता था, इफ पेरेंटल जो क्रोमोसोम है दैट आर इन पेयर, पेयर में होते थे ना, तो दे आर ऑलरेडी इन पेयर, तो उस पेयर को हमने हाफ कर दिया, तो इसी वजह से क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाते हैं. ठीक है. मान लीजिए अगर हमारे पेरेंट के पास 46 क्रोमोसोम है मियोसिस में, तो those 46 chromosomes are present like this pair में. So right now we have 23 pair of chromosome during the starting of meiosis. ठीक है. तो आफ्टर meiosis 1 is completed, हम क्या बोल रहे हैं, that chromosome number becomes half. Why? Because पूरा पूरा पेयर साइड में जाता था, पूरा पूरा पेयर ऊपर और नीचे जाता था, याद होगा आपको. जिस वजह से इट बिकम्स हाफ, 23 ऊपर गए, 23 क्रोमोसोम नीचे गए. So therefore the daughter cells were having 23 chromosome after meiosis 1. तो वही चीज यहाँ पे दिख रही है आपको कि बिफोर meiosis जो थे वो क्रोमोसोम दे वर इन पेयर. ठीक है. आफ्टर meiosis what happened, that pair जो है, सॉरी ये वाला होगा, before they were present in pair and after the meiosis 1 division जो पेयर है वो आधा ऊपर आधा नीचे, तो therefore we have one chromosome like this. तो ये meiosis 1 का जो रिजल्ट है, डॉटर सेल जो प्रोड्यूस हुए हैं, that will be haploid, both haploid, and both will be having what, both will be having 23 chromosomes. Okay. Haploid मतलब having 23 chromosomes, डिप्लॉयड मतलब हैविंग 46 क्रोमोसोम. ठीक है. ओके. तो ये तो मियोसिस 1 हो गया. अब इन्हीं दो डॉटर सेल में आपको क्या करवाना है, मियोसिस 2 करवाना है. मियोसिस 2 के बाद आपको पता है ये भी दो डॉटर सेल बनाएगा, ये भी दो डॉटर सेल बनाएगा, एंड मियोसिस 2 इज एग्जैक्टली सेम एज व्हाट, एज माइटोसिस. तो माइटोसिस में जैसे हो रहा था सेम वैसे किसमें होगा, मियोसिस 2 में. मियोसिस 2 में क्या है, द पेरेंट इज हैविंग क्रोमोसोम लाइक दिस, आधा आधा will be splitted to the opposite pole, finally we'll be getting the same number of chromosomes. ठीक है. पहले अगर 23 था तो अभी भी 23 ही है. ठीक. So after the completion of meiosis 2 what happens is we get 4 daughter cell and every daughter cell is same as the parent cell. और parent cell इस वक्त क्या था यहाँ पे, haploid. parent cell क्या था, haploid. So therefore the daughter cell which are produced will also be haploid in number. All will be having 23 chromosomes each. Every daughter cell which is produced is known as spermatid, and after the spermatid knows that he have to form sperm, तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोल देते हैं, differentiation. And after this differentiation what happens is we are getting 4 sperms like this. 4 sperm अपने पास produce हो गए. ठीक है. So this was the complete process for formation of sperm, where we started with a primordial germ cell that is diploid. We run mitosis in any of the primordial germ cells to increase the number. हमने mitosis run करवाया. Mitosis run करवा के we got daughter cells. These daughter cells were also diploid. After choosing any one daughter cells out of them, we run meiosis 1. After running meiosis 1, we get 2 daughter cells. Both the daughter cells are haploid right now, having 23 chromosomes. After getting 2 daughter cells from meiosis 1, हमने क्या रन करवाया, meiosis 2. After running meiosis 2, we eventually got 4 daughter cells, and every daughter cell was haploid, having 23 chromosomes each.
आफ्टर दी स्पर्मेटिड्स नो, ये जो 4 सेल डॉटर सेल बने उनको स्पर्मेटिड बोला. आफ्टर दे नो दैट व्हाट दे हैव टू डू इन लाइफ, दैट मीन्स दे हैव अंडरगोन डिफरेंशिएशन. After undergoing differentiation, they will form sperms. So every daughter cell will be forming one sperm each. Therefore, one primordial germ cell forms 4 sperms in total. ठीक है, और ऐसे हजारों लाखों primordial germ cells होंगे, and they will be forming 4 sperms each. इसीलिए every ejaculate is having around 250 million sperm. That is like every ejaculate. हर बार जब sperm release होगा, हर बार जब sperm निकलेगा, that will be having 250 million. ठीक है, and we don't know how many time ejaculate will be released. Okay, so therefore the number of sperm is very much high. Okay, ये आप देख सकते हो यहाँ पे. you can see um, this is the structure of a seminiferous tubule. ये एक seminiferous tubule है. ठीक है, एक seminiferous tubule में you can see ये माइक्रोस्कोपिक व्यू है, वो भी उसका 2D इमेज बनाया हुआ है. ये सबसे आउटर मोस्ट साइड पे प्राइमोडियल जर्म सेल एंड प्राइमोडियल जर्म सेल इवेंचुअली फॉर्मिंग दी स्पर्म, वो दिख रहा है आपको. एंड आई गारंटी यू वी हैव सीन इट. हम लोग जब स्लाइड्स बनाते थे, रैट का जो टेस्टिस होता था, चूहे का जो टेस्टिस है, रैट का जो टेस्टिस है, उसकी स्लाइड्स हम बनाते थे. तो उसमें एग्जैक्टली ऐसा ही दिखता था. अगर बढ़िया तरीके से स्लाइड बनी है ना, अगर उसका सेक्शन अच्छा आया है और स्लाइड अच्छी है और स्टेनिंग अच्छी हुई है, सब कुछ अगर सारा, बहुत लंबा प्रोसेस होता है, ये काफी लंबा, बहुत दिन लंबा प्रोसेस होता है. तो अगर ये सब सही हुआ है तो हमारा जो स्लाइड दिखता है दैट इज सो क्लियर, सो गुड. और आई थिंक टेस्टिस का और इंटेस्टाइन का स्लाइड सबसे बढ़िया दिखता है. तो टेस्टिस का स्लाइड इज एग्जैक्टली लाइक दिस वन, बिल्कुल ऐसा ही दिखता है. इसके नीचे आपको माइक्रोस्कोपिक व्यू भी दिखाया हो, एग्जैक्ट ऐसा दिखता है. ठीक है, माइक्रोस्कोप बढ़िया है, स्टेनिंग अच्छी है, पूरा प्रोसेस ठीक से किया है, तो आपकी स्लाइड बिल्कुल ऐसी बनती है. बहुत सुंदर स्लाइड होती है और एग्जैक्टली यही दिखता है. यू कैन सी दिस स्पर्म, वेरी माइन्यूट माइन्यूट स्पर्म इनसाइड ऑन द इनर मोस्ट साइड. ये आपको दिख रहे हैं यहाँ पे, प्लीज, ये जो आपको दिख रहे हैं धागा जैसा छोटा छोटा, these all are sperms which are being produced. ठीक है, ये जो आपको ब्लैक ब्लैक डार्क पर्पल जो दिख रहे हैं, they all are sperm. और सबसे बाहर वाले साइड पे जो आपको दिख रहा है दैट इज प्राइमोडियल जर्म सेल. ओके, तो ये बहुत, और ये कंप्लीट, ये जो कंप्लीट स्ट्रक्चर है, दिस वन सर्कल इज द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल. ओके, तो ये बहुत सुंदर तरीके से इसी तरह से दिखता है. ठीक. दो सेल आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, दो अलग अलग तरह के सेल, दैट इज सर्टोली सेल एंड इंटरस्टिशियल सेल. दिस डायग्राम इज फ्रॉम क्लास 11. ठीक है, नो नो नो, क्लास 12, रिप्रोडक्शन क्लास 12 में. दिस इज फ्रॉम क्लास 12. दो सेल्स दिख रहे हैं आपको, इंटरस्टिशियल सेल एंड सर्टोली सेल. ठीक है, सी इंटरस्टिशियल हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं. In the circulation of lymph, we studied that interstitial space they will collect from fluid and we pass it to the lymphatic vessel, right? So interstitial wherever is present, that means it is the space present between something. Okay? It is the space present between something. So space which is present in between these seminiferous tubules is the interstitial space, and that space is having some cells known as interstitial cell, also known as Leydig cells. Very important. लेडिंग सेल का हम पहले भी पढ़ चुके हैं, एक बार इसका जिक्र हो चुका है. दैट लेडिंग सेल एक्चुअली प्रोड्यूसेस द हार्मोन नोन एज टेस्टोस्टेरोन. ओके, एंड जो सर्टोली सेल्स होते हैं दे आर लाइक नर्स सेल्स, सो देयरफॉर दे आर आल्सो नोन एज नर्स सेल. ये सब नोटबुक में लिखा होना चाहिए आपके. रिकॉर्डिंग सुनते हो ना जब, तो जो भी एक्स्ट्रा पॉइंट होता है दैट ऑल शुड बी रिटन इन योर रिकॉर्डिंग, सॉरी, नोट्स. ठीक है, जैसे दिव्यांश या कुछ और बच्चे हैं जो नोट्स में ऐड करते रहते हैं जो भी रिकॉर्डिंग में चीजें बताई जाती है, so that is a good thing to do. PDF में although you have 99% of the material, but there are lots of things that are told during the lecture. During the lecture ही बताई जाती है वो, so that you have to add. उसके लिए रिकॉर्डिंग आपको दोबारा सुन के जब नोट बनाओगे एक बार उसमें ऐड कर लेना. ठीक है, interstitial cell also known as leading cell.
Sertoli cell also known as nurse cell. ठीक है जो इंटरस्टिशियल सेल होता है दैट फंक्शन टू प्रोड्यूस टेस्टोस्टेरोन विच इज अ हार्मोन एंड दैट बाय दैट वी नो कि कैसे टेस्टिस के अंदर टेस्टोस्टेरोन बन रहा है हमने बोल तो दिया कि द टेस्टिस इज प्राइमरी सेक्स ऑर्गन विच फॉर्म्स द स्पर्म एंड द टेस्टोस्टेरोन हार्मोन स्पर्म कहाँ बनेगा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर लाइक दिस किससे बनेगा प्राइमोडियल जर्म सेल से एक प्राइमोडियल जर्म सेल से कितना स्पर्म बनेगा 4 स्पर्म बनेगा ठीक है उसी तरह से जो टेस्टोस्टेरोन है दैट विल बी प्रोड्यूस्ड बाय द इंटरस्टिशियल सेल and these interstitial cells are present inside the testis. So therefore, it is regarded that testis produce both testosterone and male germ cell or male gamete. ठीक है Sertoli cell जो होते हैं they are present inside the seminiferous tubule lying somewhere in between. जैसे इस तरह से आपको दिख रहा है यहाँ पे कहीं भी बीच में आपको मिल जाएंगे like this, like this, like this. ये सब these all are Sertoli cells. सर्टोली सेल्स का काम क्या होता है बिकॉज दे आर रिगार्डेड एज नर्स सेल तो नर्स का काम क्या है टू हेल्प द पेशेंट ठीक है तो उसी तरह से सर्टोली सेल जो होते हैं दैट हेल्प द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल टू फॉर्म द स्पर्म so it also provides nutrition to the producing sperm it also provides nutrition inside the seminiferous tubule and it also helps the seminiferous tubule by this to form sperm sperm को nutrition की जरूरत है to be formed तो वो nutrition सर्टोली सेल देगा interstitial cell या Leydig cell will be producing the testosterone hormone. Okay? तो ये जो आपको स्पेस दिख रहा है इन बिटवीन यहाँ पे जो आपको थोड़े बहुत सेल्स दिख रहे हैं these cell are the interstitial cell or Leydig cells ठीक है and these all cells are primordial germ cell in between you will be getting Sertoli cells and सबसे अंदर जो प्रोड्यूस हो रहा है that will be the sperms ठीक है चलिए तो दिस वाज योर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंप्लीट अगर इसमें कोई भी डाउट है आस्क राइट नाउ अदरवाइज फीमेल रिप्रोडक्टिव स्टार्ट हो जाएगा हाँ जी डायग्राम तो आपको सारे ही बनाने हैं ठीक है डायग्राम सारे बनाने यू डोंट वरी अबाउट दैट एक रिकॉर्डिंग है मेरे पास तो वो टेस्टर्स मतलब उसमें सब कुछ है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी आ जाएगा और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर का भी आ जाएगा वो एक में आ जाएगा ठीक है तो मैं भेज दूंगी डोंट वरी अदरवाइज आप खुद भी बना सकते हो उसमें बच्चे तो रहे नहीं हुआ ठीक है आदित्य देव आपको स्पर्मेटोजेनेसिस दोबारा करना है ओके जस्ट अ सेकंड गिव मी 1 मिनट चलिए और किसको डाउट है स्पर्मेटोजेनेसिस में अभी बता दूं एक आदित्य को है और किनको डाउट है स्पर्मेटोजेनेसिस में टेल फास्ट बेटा रिस्पॉन्स फास्ट एनी स्टूडेंट हैविंग डाउट इन स्पर्मेटोजेनेसिस कैन टेल अभी ओके अंबुज आशुतोष ओके ठीक है आशुतोष अंबुज और आदित्य ओके ठीक ओके बेटा ध्यान से सुन लेना आप ठीक है डाउट हो ठीक we started with a primordial germ cell ठीक है इससे स्टार्ट किया हमने प्राइमोडियल जर्म सेल से दिस प्राइमोडियल जर्म सेल was diploid so therefore was having 46 chromosome okay this is the primordial germ cell this primordial germ cell is chosen और चॉइस करके इसकी हम क्या करते हैं we run mitosis रन करवाते हैं and after running mitosis we will be getting two daughter cells and both the daughter cells will also be having 46 chromosomes. So therefore, these two daughter cells are also regarded as diploid. Correct? ये mitosis हुआ. After that, after running 2-3 mitosis, 2-3 बार हो गई उसके बाद हम क्या करेंगे We will choose any one daughter cell. मान लीजिए हमने इस daughter cell को choose किया. Now this daughter cell is regarded as the parent cell and इस daughter cell जो बना था ऊपर उसको हम रन करवाएंगे from meiosis 1 meiosis 1 होगा तो इससे क्या बनेगा अगेन टू डॉटर सेल बनेगा and these daughter cells will be having half the number of chromosomes
So therefore these daughter cell are having right now 23 chromosomes, and therefore these are regarded as haploid cells. इसमें क्या रन हुआ है? अभी इसमें रन हुआ है meiosis 1. After that, these two daughter cells will be undergoing the second division, that is meiosis 2. meiosis 2 रन होगा दोनों में. पहले क्या हुआ था? meiosis 1 रन हुआ, then we get two daughter cells like this. अब क्या होगा? meiosis 2 रन होगा, and by every cell we will be getting two more daughter cells like this, and eventually we will be getting four daughter cells in total. बिकॉज हमको पता है कि मियोसिस 2 में द क्रोमोसोम नंबर रिमेन सेम, तो इनके पेरेंट्स में क्रोमोसोम नंबर क्या था? 23. तो क्रोमोसोम नंबर्स रिमेन सेम, मतलब दीज ऑल विल बी हैविंग 23 chromosomes. Therefore these all will be haploid cells. After getting the four daughter cells like this, हमने इनको क्या नाम दे दिया? We named them all the spermatids. इन सबको हमने क्या बोल दिया है? Spermatids. Every spermatid will be undergoing differentiation process, and after undergoing differentiation, every spermatid will be forming one sperm like this. Okay, हर spermatid ने क्या किया? Will form one sperm like this. So therefore we told that from one primary germ cell we are getting four sperms. From one primary germ cell which is diploid, eventually we are getting four sperms like this, which all are haploid, which all are having 23 chromosomes, right? वही सब चीज तो आपका उसमें दिया हुआ था डायग्राम, ये चीज आपका इसमें दिया हुआ है. That one primary germ cell which is diploid will be undergoing mitosis and forming two daughter cells. Both the daughter cell will also be diploid, having 46 chromosomes. After that, one daughter cell is chosen and it will be undergoing meiosis 1. After undergoing meiosis 1, the daughter cell produced will be haploid, having 23 chromosomes each. Both the daughter cell will now run towards the meiosis 2 and will be forming two more daughter cells. All the daughter cells, because will be having same chromosome number as their parents, so therefore these all will be having 23 chromosomes and every cell will be haploid. These four cells produced are known as spermatids, and every spermatid will be forming after differentiation 1 sperm. Eventually we will be getting four sperms like this. ठीक है, नाम क्या दिए हमने? स्टार्ट हुआ था प्राइमोर्डियल जर्म सेल से. आफ्टर माइटोसिस जो हमारे पास दो डॉटर सेल बने थे उनको हमने क्या नाम दे दिया? स्पर्मेटोगोनियम. स्पर्मेटोगोनियम से क्या बनेगा? थोड़ा सा ग्रो होके प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट. प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट विल अंडरगो meiosis 1 to form secondary spermatocyte like this. ठीक है, स्टार्ट हुआ meiosis प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से, meiosis 1 के बाद secondary spermatocyte, meiosis 2 के बाद spermatids, and after differentiation we form sperm. ठीक है, so this was again your revision for spermatogenesis. अभी भी डाउट है तो बता दो. क्लियर हुआ? शुभम, आशुतोष, अंबुज और आदित्य, डाउट क्लियर हुआ? यस और नो? शुभम का हो गया, ओके. और बाकी अंबुज, आशुतोष, आदित्य, डोंट हेजिटेट, जस्ट आस्क. अभी भी नहीं क्लियर हुआ? ओके, आदित्य का भी हो गया, अंबुज हो गया, गुड. और कौन था? आदित्य, आशुतोष, अंबुज एंड शुभम. अंबुज, आशुतोष, आदित्य, शुभम, सबका क्लियर. ठीक है, गुड, शाबाश, अच्छी बात है, आपको समझ में आ गया. अदरवाइज वैसे तो आपका जो स्पर्मेटोजेनेसिस है वो क्लास 12 में आता है आपको, पर ठीक है, क्वेश्चन आ जाते हैं कभी कभी, क्यों फालतू में रिस्क लेना छोड़ के, तो इस वजह से करा दिया हमने आपको. ठीक है, आप ये समझो आप क्लास 12 का रिप्रोडक्शन चैप्टर कंप्लीट कर रहे हो. ठीक है,
क्लास 12th में जो मेडिकल लेगा उसको लगेगा अरे ये सब तो हमने पहले ही पढ़ लिया था, और उससे ज्यादा ही पढ़ोगे एक्चुअली आप, काफी ज्यादा पढ़ लोगे आप। ठीक। और पता है क्या होता है, मतलब सिर्फ क्लास में सुनना होता है, ये बात मैं आप डे वन से बोल, जस्ट लिसन इन द क्लास, नथिंग एल्स इज रिक्वायर्ड। लिसन वेरी अटेंटिवली इन द क्लास, उसी वक्त आपको सब याद हो जाएगा। सारा दिन याद करने की जरूरत नहीं। ओके, तो नेक्स्ट आपका स्टार्ट होता है आज फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। जैसे हमने मेल रिप्रोडक्टिव में पढ़ा था दैट दे हैव प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स। Females also have primary and secondary sex organ. Primary sex organ in case of female will be producing gametes, and gametes in case of female is ova or egg or oocyte, कुछ भी बोल दो. So the primary sex organ will be ovaries, and females have one pair of ovary. जैसे males के पास one pair of testis था, उसी तरह से females have one pair of ovaries. Ovaries basically इसकी exact location अगर आप देखोगे ना, तो kidneys के just नीचे प्रेजेंट होती है आपकी जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो. ठीक है, तो जस्ट बिलो द किडनी इज प्रेजेंट द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. और ओवरीज जो होता है सेम जैसे मेल में था, टेस्टिस वाज प्रोड्यूसिंग स्पर्म आल्सो एंड टेस्टोस्टेरोन आल्सो, उसी तरह से फीमेल में भी द ओवरीज विल बी प्रोड्यूसिंग ओवा आल्सो एंड विल बी प्रोड्यूसिंग सेक्स हार्मोन आल्सो जैसे एस्ट्रोजन. ठीक है. Secondary sex organ in case of female is like every structure which is there in the female reproductive system except ovaries. Ovaries के अलावा जितना बच गया सब secondary. ठीक है, तो इसमें सब कुछ आ जाएगा. जैसे सबसे पहला आता है सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में डक्ट सिस्टम. डक्ट सिस्टम में सबसे पहले आएगा आपका फेलोपियन ट्यूब. फेलोपियन ट्यूब इज लाइक इस तरह से 2 in नंबर. ये ओवरीज हो गई आपकी एंड दीज आर फेलोपियन ट्यूब. आगे आएगा डायग्राम. फेलोपियन ट्यूब 2 है नंबर में, और हर एक फेलोपियन ट्यूब जो है वो टोटल 12 सेंटीमीटर की होती है ऑलमोस्ट. ठीक है, वो एक छोटा वाला स्केल होता है ना 15 सेंटीमीटर का, उससे बस थोड़ा सा कम, उतनी बड़ी होती है एक फेलोपियन. ठीक है, और फेलोपियन ट्यूब का बेसिकली काम क्या होता है, इट टेंड्स टू अराइज फ्रॉम द ओवरी एंड इट एंड्स अप इनसाइड द यूट्रस. ठीक है, तो ओवरी टू यूट्रस इसका रूट होता है. और आपने टिश्यूज चैप्टर में पढ़ा होगा लास्ट ईयर that the inner wall of fallopian tube consists of an epithelium. कौन आंसर बताएगा मुझे चैट बॉक्स में, which type of epithelium was that? ठीक है, the question is which type of epithelium is present on the inner wall of fallopian tube. Write down in the chat box. Okay. And fallopian tube actually is the site for fertilization. हम लोग इतनी देर से बोल रहे हैं कि जो ओवा है उससे स्पर्म जाके फ्यूज होगा, तो वो जो फ्यूजन है, वो जो फर्टिलाइजेशन हो रहा है, that fusion of sperm and ova is known as fertilization, and that fertilization is taking place inside the fallopian tube only. आपको मैंने एक असाइनमेंट भेजा था जिसमें लिखा था कि सॉल्व क्वेश्चन 1 to 16. ठीक है, अब धीरे धीरे जैसे जैसे आपका आगे बढ़ता जाएगा चैप्टर, यू इट्स योर ड्यूटी नाउ कि उसमें से जो क्वेश्चन उससे रिलेटेड आप सॉल्व करते हो. बेसिकली सीक्वेंस वाइज ही मिलेंगे आपको उसमें क्वेश्चन, जैसे मेल रिप्रोडक्टिव फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव फिर इनफर्टिलिटी, ऐसे ही आएगा. तो मेल रिप्रोडक्टिव हो गया, अब उसके क्वेश्चन सॉल्व करो. फीमेल रिप्रोडक्टिव का जितना हुआ है उसके क्वेश्चन सॉल्व करो. ठीक है, so that's your responsibility now. I don't have to make you remind every time. Okay, तो उसमें एक क्वेश्चन है आपका कि what is the site for fertilization or fusion of male and female gametes. तो site for fertilization is your fallopian tube. ठीक, नेक्स्ट आता है जो डक्ट सिस्टम है, उसमें नेक्स्ट आएगा आपका यूट्रस. यूट्रस इज ऑल्सो नोन एज वॉर्म, और हिंदी में इसको बच्चादानी बोला जाता है. ठीक है, वूम बोलते हैं, वैसे वॉर्म भी नहीं बोलते, वूम होता है. ठीक, तो यूट्रस जो है दैट इज लाइक अ पियर शेप्ड ऑर्गन. ठीक है, मस्कुलर होता है, बहुत अच्छा खासा मस्कुलर होता है ऑर्गन. एंड लोकेशन कहाँ होगी इसकी, जैसे अगर आप साइडवेज देखेंगे तो दिस इज यूट्रस, एंड यूट्रस के आगे वाली साइड पे या सामने वाली साइड पे इस तरह से यूरिनरी ब्लैडर दिखेगा आपको, एंड पीछे वाली साइड पे आपको रेक्टम दिखेगा. ठीक है, सो वी लाइक हैव 3 ओपनिंग्स. एक यूरिनरी ब्लैडर की ओपनिंग होगी, दैट इज द यूरेथ्रा. तो वन ओपनिंग इज यूरेथ्रल ओपनिंग,
one opening is uterus wali opening, and one opening is rectum wali opening. So three openings are there. First is the anal opening बोलते हैं उसको, या आप urethral opening. Second is the vaginal opening. Vagina is the part of female reproductive system, पढ़ेंगे आप. And last one is the rectal opening या anus. ठीक है, तो थ्री ओपनिंग्स आर सीन, और ये मैंने आपको बता दिया कि सबसे सामने वाली साइड पे होगा आपका ये यूरिनरी ओपनिंग, उसके पीछे होगा आपका विजाइनल ओपनिंग, एंड देन होगा एनल ओपनिंग. थ्री ओपनिंग्स आर देयर. ओके. यूट्रस का काम क्या होता है बेसिकली? इट रिसीव्स, दिस इज यूट्रस, दिस इज द वेजाइना, दिस इज यूट्रस, दीज आर द ओवरीज प्रेजेंट ऑन द साइड, एंड इस तरह से ये फेलोपियन ट्यूब होता है. ठीक है, तो आप देख सकते हो फेलोपियन ट्यूब जो है दैट इज starting from the ovaries and ending up inside the uterus. So uterus receives fallopian tube from both sides. This statement सही है. It receives fallopian tube from both the sides. Plus uterus opens into vagina. ये भी सही है. Plus the lower portion of this vagina is known as cervix. Sorry, no. The lower portion of this uterus is known as cervix. Like this. This is uterus. This is cervix and this is vagina. This is uterus. Receiving fallopian tube from both the sides. Okay. यूट्रस जो है उसका मेन काम होता है इन द इम्प्लांटेशन. इम्प्लांटेशन क्या होता है? मान लीजिए ये जो ओवा यहाँ से आ रहा था और वो ओवा स्पर्म के साथ फ्यूज हो चुका है, मतलब जाइगोट बन चुका है. जाइगोट बन के फिर आगे बहुत सारे स्टेजेस होते हैं, मोरूला, ब्लास्टोला, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. तो उसमें से एक स्टेज जो है दैट विल बी अटैच टू दिस यूट्राइन वॉल लाइक दिस. बिल्कुल अटैच हो जाएगा. दिस अटैचमेंट ऑफ दिस एम्ब्रियो टू द यूट्रस वॉल इज नोन एज इम्प्लांटेशन. तो यूट्रस जो है दैट आल्सो हेल्प्स इन द इम्प्लांटेशन. दूसरी चीज, एवरी मंथ इफ स्पर्म इज नॉट कमिंग और इफ ओवा इज नॉट फर्टिलाइज, क्या होगा? यूट्रस के जो सबसे अंदर वाली लाइनिंग है, दिस एंडोमेट्रियल लाइनिंग बोलते हैं उसको, पढ़ोगे आप आगे. सबसे इनर साइड ऑफ यूट्रस जो है उसकी जो लाइनिंग है वो बिल्कुल झड़ जाएगी या खत्म हो जाएगी या गिर जाएगी. एवरी मंथ, दिस इज एवरी मंथ. ठीक है, तो हर महीने अगर स्पर्म इज नॉट कमिंग और इफ द ओवा इज नॉट बीइंग फर्टिलाइज्ड, तो क्या होगा? द इनर वॉल ऑफ यूट्रस शेड, खत्म हो जाती है, वो झड़ जाती है, फिर हर महीने दोबारा नई नई बनती है. ठीक है, तो दिस लेयर एक्चुअली शेड्स, झड़ जाती है ये पूरी, विच result in, because lots of blood vessels are also present in this layer. तो जैसे ही ये लेयर खत्म होती है उन ब्लड वेसल्स में से खून आने लग जाता है बहुत सारा. ठीक है, so lots of blood, lots of pain, lots of uneasiness, and it result in the shedding of this uterine wall. क्यों शेड हुआ ये? बिकॉज मेन काम क्या था यूट्रस का? टू इम्प्लांट द एम्ब्रियो. उसको एम्ब्रियो को इम्प्लांट करवाना था ताकि वो फिर फिटस बन सके और उसकी डिलीवरी हो सके. बट वो तो हुआ नहीं, बिकॉज ओवा स्पर्म के साथ फ्यूज ही नहीं हुआ, तो कहाँ से इम्प्लांटेशन हो, कहाँ से एम्ब्रियो बने? तो देर इज नो इम्प्लांटेशन, देयर फोर इस एंडोमेट्रियल लाइनिंग की अब जरूरत नहीं. तो इस वजह से वो शेड हो गई, एंड शेड होने के बाद फिर दोबारा से नई एंडोमेट्रियल लाइनिंग चलती एवरी मंथ. ठीक है, so implantation also occurs inside the uterus. This is a diagram. आपको मैं एक वीडियो भेज दूंगी, रिकॉर्डिंग. उसमें आई विल टीच यू हाउ टू ड्रॉ बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव. तो ऑल्दो दिस इज वेरी इजी, ये क्लास 12 से ही है, बट इट इज वेरी इजी, सबसे इजीएस्ट डायग्राम है. जब भी आप फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बनाना स्टार्ट करते हैं तो ऑलवेज स्टार्ट विद दिस पोर्शन, यूट्रस वाला पोर्शन. उसके साइड में आप इस तरह से ओवरीज बनाओ लाइक दिस. हर एक ओवरी में से एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनाओ लाइक दिस, इधर भी और उधर भी. फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को एक ट्यूब में मर्ज करो और उस ट्यूब को यूट्रस में जाके मिला दो लाइक दिस. ठीक है, और यूट्रस के बाद फिर एक ओपनिंग बनाओ, सर्विक्स. सर्विक्स को थोड़ा सा और छोटा कर दो, बाद में उसको वेजाइना. ठीक है, तो इस तरह से स्टार्ट कर सकते हो आप बनाना. तो वही चीज आपको इसमें दिखाया हुआ है, दैट फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ यूट्रस. That uterus is having lots of linings. The outermost lining of uterus is
metrium. The inner lining of perimetrium is myometrium, which is made up of lots of muscles. And innermost lining of uterus is known as endometrium, which shows finger-like projections like this. Cilia nahi hai ye, pehli baat. Cilia, don't confuse it with cilia. Cilia were present in the fallopian tube. These are not cilia. These are the finger-like projections. वो इनफोल्डिंग्स हैं ये एंडोमेट्रियल लाइनिंग की, ठीक है. एंड इस इनफोल्डिंग का मतलब क्या होता है कि जब ऊपर से एम्ब्रियो आएगा तो आराम से इसमें वो इम्प्लांट हो सकता है अच्छे से, ठीक है. एकदम स्मूथ होती तो वो गिर जाता है embryo, ठीक है. तो every uterus is having three layers. Outermost is perimetrium, middle is myometrium. पेरीमेट्रियम को पेरिफ्री से याद रखो. पेरिफ्री मतलब सबसे साइड में, तो पेरिफ्री से पेरीमेट्रियम. मिडल मतलब स्टार्ट विद एम, तो मायोमेट्रियम. और होता है ना एंडोसाइटोसिस, पढ़ा होगा, सेल के अंदर मूवमेंट ऑफ समथिंग या ट्रांसपोर्ट ऑफ समथिंग इज एंडोसाइटोसिस. तो एंडो मतलब अंदर, तो सबसे अंदर वाले लेयर विल बी एंडो. और मेट्रियम मेट्रियम पढ़ रहे हैं तो मेट्रियम. तो एंडोमेट्रियम इज द इनरमोस्ट लेयर. द यूट्रस इज हैविंग अ हेड आल्सो नोन एज यूट्राइन फंडस. उसमें भी आपको तीन लेयर्स मिलेंगी, पेरीमेट्रियम, myometrium and endometrium. Uterus is having fallopian tube on the both side. These fallopian tube have finger-like projections at the end. These finger-like projections are known as fimbriae. Finger-like projections are present near to the ovaries. देख सकते हो आप, they are present very close to the ovaries. और आप इसकी अगर 3D इमेज देखेंगे ना, ये तो आपको कार्टून इमेज दिखाई हुई है, 3D इमेज देखोगे ना तो जैसे कोई एग है और उस एग को आपने ऊपर से इस तरह से उंगलियों से पकड़ा हुआ है, इस तरह से दिखता है. मतलब इट्स लाइक fimbriae are not completely attached with the ovary, but it is present very very close to the ovary. बहुत close होता है ये ovary के. तो whenever the egg is released, जब भी egg release होगा तो उसको कोई और जगह मिलेगी ही नहीं जाने की, डायरेक्टली वो किसके पास जाएगा, fimbriae के पास. Fimbriae will carry it towards the fallopian tube. अब जब fallopian tube की बारी आती है, then we get कि fallopian tube consists of three portions. The portion which is close to the fimbriae are the infundibulum. Portion which is away from infundibulum is the ampulla, and portion which is near to the uterus is the isthmus. और बहुत प्रिसाइजली अगर पूछा जाए कि आपका फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है, तो फर्टिलाइजेशन एक्चुअल में इधर होता है, दिस साइट. दिस इज द एक्चुअल साइट फॉर फर्टिलाइजेशन. नाउ यू कैन सी कि ये जो साइट है दैट इज इन बिटवीन दिस isthmus and this ampulla. So therefore, the fertilization takes place at the ampullary isthmus junction. ये आपको बहुत जगह लिखा हुआ मिलेगा. Fertilization takes place at the ampullary isthmus junction और isthmus ampulla junction. ठीक है, उसके जंक्शन पे आपका यहाँ पे फर्टिलाइजेशन फ्यूजन होगा. ठीक, एक बार एग आया, वो स्पर्म से फ्यूज हो गया, जाइगोट बनेगा, जाइगोट से नेक्स्ट मोरुला, नेक्स्ट स्टेज बनेगा, मोरुला से ब्लास्टुला बनेगा, ब्लास्टुला स्टेज विल बी इम्प्लांटेड, ब्लास्टुला विल फॉर्म फीटस, फीटस पूरा फुल्ली ग्रोन होने के बाद थ्रोन आउट ऑफ द यूट्रस, डिलीवरी हो जाएगा. ठीक है. द ओपनिंग ऑफ यूट्रस is the first is cervix and the canal which is taking that opening, मतलब वो जो पाथवे है ओपनिंग का, दैट इज द सर्वाइकल कैनाल. सर्वाइकल कैनाल के बाद होता है वेजाइना. ठीक है, दिस इज वेजाइना. एंड वेजाइना के बाद होता है ये आउटपुट यहाँ. ठीक है, सो दिस इज द वेजाइनल ओपनिंग आउटसाइड. एंड वेजाइना के ऊपर आएगा आपका सर्विक्स, सर्विक्स के ऊपर आएगा यूट्रस, और यूट्रस के ऊपर आएगा दो फेलोपियन ट्यूब ऑन द साइड 12 सेंटीमीटर ईच. Every fallopian tube having finger-like projections known as fimbriae, which are almost closely present with the ovary. Ovary से जैसे ही egg आएगा will be moved inside these fingers, moved inside fallopian tube, get fertilized if sperm is there, get implanted, सब सही रहा तो बड़ा हो जाएगा, fetus बनाएगा, will be delivered out. ठीक है. तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए that which lining of the uterus sheds every month, तो आंसर will be endometrium. Which lining of uterus is muscular in nature? Myometrium. The egg which is released from ovary is received directly by the fimbriae. The point of
fertilization is the ampullary isthmus junction. The site of fertilization is fallopian tube. और डिटेल में अगर आंसर आए, अगर क्वेश्चन आंसर में है isthmus ampullary junction, तो आंसर वो होगा, fallopian tube है तो वो होगा आंसर. ठीक है. So this was your female reproductive system. साइड से अगर आप देखते हो, अगर आपने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को इस तरह से ब्लेड लेके बीच में से कट कर दिया, ठीक है, तो दिस इज द कट पोर्शन. एक साइड, पीछे वाली साइड आपको फेलोपियन ट्यूब दिख रही है. ये आपको बहुत सारे, ध्यान से अगर देखेंगे तो ये जो आपको दिख रहे हैं, these are the फिम्ब्रे. एंड ये जो नीचे आपको अटैच दिख रहा है, दिस इज द ओवरी. ठीक है. एंड दिस इज द यूट्रस. यूट्रस में आपको ये बहुत मोटी लेयर, जो थिक लेयर दिख रही है, दैट इज मायोमेट्रियम. आउटर मोस्ट साइड पे पेरीमेट्रियम, इनर मोस्ट साइड पे एंडोमेट्रियम. और ये यूट्रस कैविटी है, यूट्राइन कैविटी बोलते हैं, अंदर जो स्पेस है, दैट इज यूट्राइन कैविटी. ठीक है. यूट्राइन कैविटी जो है, दैट इज ओपनिंग इनसाइड द सर्विक्स. cervix is opening inside the vagina and vagina is opening by the vaginal opening. इस तरह से साइड वर्ड्स होता है. मतलब ऐसा नहीं होता, अगर आप साइड से देखोगे तो ऐसा नहीं है कि आपको इस तरह से मिलेगा कुछ, ऐसा नहीं है. यूट्रस इज प्रेजेंट लाइक दिस एंड देन इट्स लाइक अ यू टर्न. यू टर्न भी नहीं है, सर्विक्स एंड देन वेजाइना, ऐसा होता है. ठीक है. चलिए, इस तरह से ये हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ये कैसे होता है इम्प्लांटेशन. इस तरह से फीटस जो है वो इम्प्लांट होता है बाय द प्लेसेंटा टू द यूट्रस वॉल. वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे. तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इम्प्लांटेशन पढ़ेंगे एंड वी विल स्टडी अबाउट डिफरेंट स्ट्रक्चर जो हमने पढ़े आज, मेमोरी ग्लैंड्स के बारे में एंड ऑल, हाउ फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस. एंड बस इतना ही होगा नेक्स्ट क्लास में. तो उससे नेक्स्ट लेक्चर में आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होगा, बिकॉज इट इज वेरी बिग टॉपिक. मेंस्ट्रुअल साइकिल इज लाइक वेरी बिग एंड थोड़ा सा ट्रिकी भी है मेंस्ट्रुअल साइकिल. वेरी गुड. सही है सबका आंसर. सिलिएटेड कॉलुमिनर एपिथेलियम इज प्रेजेंट इनसाइड द फैलोपियन ट्यूब. गुड. इफ यू हैव एनी डाउट इन टुडेज लेक्चर, आप पूछ सकते हैं अभी तक जितना पढ़ा उसमें. बाकी हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे. यू हैव डाउट, आस्क फटाफट. आस्क योर डाउट्स फटाफट. इफ एनी, इफ नो डाउट देन राइट नो डाउट. ओके, नो डाउट. इम्प्लांटेशन मतलब जस्ट अटैचमेंट ऑफ दैट एम्ब्रियो टू द यूट्रस वॉल. यूट्रस की जो वॉल है उस पे, एंडोमेट्रियम जो है उस पे एम्ब्रियो का जुड़ना इज इम्प्लांटेशन. ठीक है आशुतोष. चलिए, दिस वाज ऑल फॉर टुडे. थैंक यू. ड्यूरिंग प्रेगनेंसी पूरे 9 मंथ्स तक, वेट, 9 मंथ्स तक एक एक एग रिलीज होता है. नो नो नो, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी 9 मंथ्स में नो एग इज रिलीज. एग इज जो रिलीज हुआ था, फर्टिलाइज होके इम्प्लांट हो चुका है, फीटस बन रहा है. तो ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी नो एग विल बी रिलीज. नो, नो मेंस्ट्रुअल साइकिल विल टेक प्लेस ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी. ठीक है. सर्टोली सेल का फंक्शन होता है अभिनंदन, टू प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द फॉर्मिंग स्पर्म. सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर वी नीड सम न्यूट्रिशन आल्सो, बिकॉज सेल्स है बहुत सारे. सेल्स को न्यूट्रिशन चाहिए टू ग्रो, टू फॉर्म स्पर्म्स. तो उसके लिए वी नीड न्यूट्रिशन दैट इज प्रोवाइडेड बाय सर्टोली सेल. ओके, एनी मोर डाउट? चलिए, नो डाउट. सो दिस वाज ऑल. थैंक यू.